Okay, students, this topic is about ecological succession, which is the third topic of the SMART syllabus of second year, chapter 25. Ecological succession. So what is ecological succession? It is a process by which the structure of biological means a plant community evolves over time in an area, or the process of change in the species structure of an ecological community over time. This type of change is directional, means direction from simple to complex, or from herbs, shrubs to trees, or from trees, shrubs, herbs. It means from simple to complex, directional. Non-seasonal means this type of change is not affected by seasons, means summer, winter, or this type, because this type of change sometimes occurs in centuries, 1500 years, 150 years, 180 years time. So therefore that is not affected by seasons. And this is a cumulative change, means overall the environment of the community changes, the appearance of the community changes. So this is a cumulative change, means cumulative change means that all the plants then present in that community changing over time, and with that the soil is changing, with that the animal species in that community are also changing. So this is a cumulative change. Cumulative means the overall conditions of that community are changing in a directional way, in a non-seasonal way. What happens during that change, that is colonization. Some communities colonizes, then they establish themselves there, and when one community is colonized, they establish, so there is a chance that other communities which are present, they become extinct from that community. Extinction occurs. Colonization, establishment, and extinction of the community occurs. So this definition, I will explain this definition over time, this definition in a short time with an example. But first, this ecological succession, this is of two types. Ecological succession, one is this is the types of succession. So there are two types. One is known as primary succession. Primary succession, when a community is established, the succession on ecological succession on a lifeless land, or you can say on a newly formed land. That is known as ecological succession. What do we mean by this primary succession? For example, there is an area, a newly formed area. For example, new sand dunes are formed. New rocks जो हैं वो expose हो जाते हैं. कोई ग्लेशियर गिर जाता है, जब लावा निकल आता है. So this is a newly formed land. या एक ज़मीन है, वहाँ पर दरिया बह रहा है, लेकिन दरिया अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे, और वो ज़मीन जो है वो एक्सपोज हो जाए. सो अब ये जिस ज़मीन पर दरिया एक्सपोज हो रहा है, जो ज़मीन दरिया अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे, और वहाँ पर वो ज़मीन जो है वो एक्सपोज हो जाए, या सैंड ड्यून्स बन जाएं, या ग्लेशियर्स गिर जाएं, या रॉक्स के ऊपर सॉइल है वो ख़त्म हो जाए, वो इरोड हो जाए, या लार्वा है, तो इन सारे कंडीशन में दिस इज़ अ न्यूली फॉर्म लैंड, और यहाँ पर कोई ज़िंदगी के आसार नहीं है इस वक्त. सो अगर यहाँ पर एक कम्युनिटी अब इस्टेब्लिश होती है, दैट इज़ नोन एज व्हाट, प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा. सो सक्सेशन ऑन अ लाइफलेस लैंड, या हम कहते हैं ऑन अ न्यूली फॉर्म लैंड, दैट इज़ नोन एज व्हाट, primary succession कहलाएगा. The second one is known as secondary succession. So what is secondary succession? ये secondary succession क्या होता है? Secondary succession
is the type of succession which is the succession, a succession that occurs on a land where life once existed. ऐसे सक्सेशन जो ज़मीन पर हो, ऐसी ज़मीन पर हो जहाँ पर कभी लाइफ एग्जिस्ट करती थी. दैट इज़ नॉट अ लाइफ. फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फॉरेस्ट, लेकिन वो फॉरेस्ट जो है वहाँ से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, फायर आग की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, या जो भी है वहाँ से वो फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है. तो अब अगर इस ज़मीन पर दोबारा कोई प्लांट कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो जाए, रिफॉरेस्टेशन हो जाए, नेचुरली हो जाए, सो दैट इज़ नोन एज व्हाट, ये क्या कहलाएगा? दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी सक्सेशन. यानी एक ज़मीन है, उस पर पहले कम्युनिटी मौजूद थी, लेकिन किसी नेचुरल या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो कम्युनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं और अब वहाँ पर दोबारा कम्युनिटीज़ इस्टेब्लिश हो रही हैं. सो दैट इज़ नोन एज व्हाट, सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है. अब ये जो सक्सेशन है ये दो जगहों पे हो सकती है. इकोलॉजिकल सक्सेशन, ecological succession can occur on two types of lands या conditions. वहाँ पर इकोलॉजिकल सक्सेशन हो सकती है और वो दो टाइप्स क्या हैं? एक को हम कहते हैं ज़ीआर्क, एक को हम कहते हैं ज़ीआर्क सक्सेशन. ज़ीआर्क succession. So what is Zyark succession? We know the succession which occurs on the land where water is limited, या हम कहते हैं where water is deficient. Dry land जिसको हम कहते हैं, the succession which occurs on the land where water is deficient, limited. तो पानी कम है उस वजह से. दूसरे को हम कहते हैं हाइड्रार्क, where land succession occurs and the land where land is covered by वाटर. तो अगर आप अंडरस्टैंड करें, बहुत आसान, दो जगहों पे प्लांट्स नहीं होती. एक वो जहाँ पे पानी बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है, वाटर डेफिशिएंट हो, सपोर्ट नहीं कर सकती प्लांट कम्युनिटीज़ को, तो वहाँ पे प्लांट्स नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल रॉक्स. दूसरा जो है हाइड्रार्क, जहाँ पर पॉन्ड्स हैं, शेलो वाटर है, वहाँ पर भी प्लांट्स नहीं होते, बिकॉज द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर, सो द प्लांट्स कैन नॉट ग्रो ओवर देयर. सो देयर फॉर देट कंडीशन, तो एक दोनों सूरतों में वाटर इज अ मेन. एक में पानी निश्ता कम है, न होने के बराबर है. दूसरी जगह में जब वाटर कहीं होगा किसी सॉइल के ऊपर, तो वहाँ पर फिर ऑक्सीजन इन सॉइल विल बी डिफिशिएंट. तो ऑक्सीजन जब कम हो जाएगा, एयरेशन कम हो जाएगी, तो फिर भी ये प्लांट्स को सपोर्ट नहीं कर सकता. सो दो जगहों पर ये इकोलॉजिकल सक्सेशन हो सकती है. तो उसमें पहला हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअली जो बुक में एक्सप्लेन है, डेट इज ज़ीरो सीयर आर द stages in the development of plant communities, in Zyark conditions. Okay, Zyark succession. So this is actually a succession in Zyark that is known as, and there are different types of stages in that. One is known as the crustose lichen stage. The second one is known as the foliose lichen stage. The third one is known as
the moss stage. The next one is known as herbs stage. The shrubs stage, and then the tree stage, and finally the climax community. So these are first, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. These are the stages. What are these stages? Then the zeros here. They are the stages. जब ज़ीरार conditions हो, dry conditions हो, वहाँ पर community establish होती है. So that community will be established in stages, and these stages are known as crustose lichen stage, foliose lichen stage, moss stage, and herb stage. ये कहलाएगा. ठीक. So the first of all, इसको ऐसे understand करें. I am telling this whole thing in a diagram. Consider करें कि this is a rock. ये हमारे पास क्या है? This is a rock. This is a large rock or a rocky land. आप इसको कहें this is a rocky land. जब हम कहेंगे there is a rocky land, so water is deficient. You understand? Water is deficient. यहाँ पर water deficient है. दूसरा, nutrients are deficient. तो ये this is a rocky land, और इस rocky land में दो चीज़ें हैं. The rocky land है, यहाँ पर water भी deficient है और nutrients भी deficient है. बारिशें हो जाएंगी तो सारा का सारा पानी जो है वो run off water होगा, वो यहाँ से बह जाएगा, और ये rock जो है water को absorb नहीं कर सकता. This is what we understand from the rocky stage. लेकिन जब यहाँ पर कम्युनिटी इस्टेब्लिश होती है किसी रॉकी स्टेज पर, तो सबसे पहले इस रॉक के सरफेस पर छोटे छोटे लाइकन्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएंगी. जगह जगह पर छोटे छोटे लाइकन्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएंगी. और लाइकन्स कैसे इस्टेब्लिश होंगी? यू नो कि लाइकन्स में जो फंगल पार्टनर है, लाइकन्स इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई. अब इसमें जो फंगल पार्टनर है, आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि वो फंगल पार्टनर इवन दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर. तो अब ये जो एरिया है जहाँ पर ये रॉक्स रहते हैं, इसके इन्वायरमेंट में एयर में मॉइस्चर होता है, तो इसमें जो फंगल पार्टनर है वो यहाँ से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है. इसमें जो एल्गल पार्टनर है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है. सो दीज आर द स्मॉल लाइकन, स्मॉल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन स्टार्ट लिविंग ओवर ऑन रॉक्स. और अब इसमें जो ये माइसीलियम होगा, इनका वो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या करेगा, वो पेनेट्रेट भी कर सकता है रॉक्स में. एंड दिस इज अ टाइप, इस प्रोसेस को हम कहेंगे, अच्छा ये पेनेट्रेट कर सकती हैं. हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर डेथ होगी. यस, वो तो हमारा ईमान है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के जितने जानदार हैं उनकी क्या है, उनकी यहाँ पर उसकी मौत होनी है. तो जब इनकी डेथ होगी तो ये जब डिकम्पोज होंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो है ये बन जाएगा. और जब ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा तो वो ऑर्गेनिक मैटर अब सपोर्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स होंगी, ऑर्गेनिक मैटर होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी. अब ये रॉक जो है थोड़े से बड़े साइज के लाइकन्स को सपोर्ट करेगा, और वो लाइकन्स अब कहलाएंगे क्या, दीज लाइकन्स आर नाउ नोन एज द सेकंड स्टेज. और वो क्या होगा, फोलियोज लाइकन, थोड़े से स्टेज में बड़े. जो पहले हैं ये कौन से हैं, दीज आर स्टेज 1 क्रस्टोज लाइकन. अब क्या होंगे, फोलियोज लाइकन्स होंगे. ये फोलियोज लाइकन्स थोड़े से बड़े होंगे, उनका भी वही होगा कि उनका माइसीलियम रॉक्स के अंदर पेनेट्रेट करेगा, इनकी डेथ होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सॉइल बन जाएगा, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत होगा. ये जो इनका माइसीलियम पेनेट्रेट करेगा, इससे यहाँ पर एक प्रोसेस होगा और उसको हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स. उसको हम क्या कहते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. ये टेक्निकल लफ्ज़ है वेदरिंग ऑफ रॉक्स.
वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। यहाँ पर शुरू हो जाएगा क्या, ब्रेक डाउन। दिस इज अ स्लो प्रोसेस, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स शुरू हो जाएगा यहाँ पर। ब्रेक डाउन से क्या मतलब, ये जो इसके माइसीलियम के हाइफी जो है ये नीचे पेनिट्रेट करेंगे, सॉइल बनेगा, इससे वेदरिंग ऑफ रॉक्स स्टार्ट हो जाएगा। यू नो बहुत स्लो प्रोसेस दैट विल टेक 10, 20, 30, 40, 50 years, but this would be a process that is known as what, weathering of rocks. अब इसके बाद यहाँ पर जब सॉइल बन जाएगा तो छोटे छोटे लाइकन्स जो है उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी इसके सरफेस पर। दीज आर द लाइकन्स दैट विल स्टार्ट ग्रोइंग ओवर हेयर। यू नो ये लाइकन्स यहाँ पर इस रॉक्स के सरफेस पर ये जो लाइकन्स हैं ये बन रहे हैं। दीज आर द स्मॉल लाइकन्स जो यहाँ पे बन रहे हैं। अब ये लाइकन्स का भी वही होगा, इनकी डेथ होगी, ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा, वो ऑर्गेनिक मैटर इस रॉक्स के सरफेस पर एकमुलेट करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे और ये सारी चीज़ें फेवर करेंगी इससे ज़्यादा बेहतर किस्म के स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को। तो अब यहाँ पर छोटे छोटे हर्ब्स जो हैं, हर्ब्स यू नो हर्ब्स आर स्मॉल नॉन वुडी प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं यहाँ पर उनकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी। दीज आर द स्मॉल प्लांट्स जिसमें उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। नॉन वुडी प्लांट्स, हर्ब्स, नॉन वुडी प्लांट्स। अगेन द सेम प्रोसेस अकर्स, ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है ये कंटिन्यू रहेगा, यू नो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब ये मज़ीद प्लांट्स को सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर श्रब्स की ग्रोथ होगी, थोड़े से इससे बड़े साइज़ के प्लांट्स, हर्ब्स से बड़े साइज़ के प्लांट्स यहाँ पर श्रब्स आकर इस्टेब्लिश हो जाएंगे और उनके रूट्स जो हैं वो रॉक्स के अंदर ग्रो करेंगे। ये जो श्रब्स होंगे इनके रूट्स यहाँ पर ग्रो करेंगे, ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है ये कंटिन्यू करेगा। दीज आर द श्रब्स, वुडी प्लांट्स, श्रब्स। सॉइल बन रहा है, रॉक जो टूट रहा है, सॉइल बन रहा है और एनवायरनमेंट अब फेवर करेगा। तो यहाँ पर थोड़े बहुत छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के ट्रीज़ जो हैं यहाँ पर बन जाएंगे। यहाँ पर छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के ट्रीज़ जो हैं यहाँ पर बन जाएंगी एंड दैट इज़ नोन एज व्हाट, ट्री कम्युनिटी कहलाएगा। तो पहले हमने पढ़ा क्रस्टोज, छोटे छोटे लाइकन, क्रस्टोज लाइकन, फिर हमने पढ़ा फोलियोज लाइकन, उसके बाद हमने पढ़ा देयर आर मॉसेस, फिर हमने कहा देयर आर हर्ब्स, that is the stage 4, then there are shrubs, that is the stage 5, then there are trees, that is the stage 6। ये काम होगा और जब ये ट्रीज बन जाएंगी, इधर उधर इक्का दुक्का किस्म के ट्रीज यहाँ पे बन जाएंगी, तो फाइनली एक कम्युनिटी ट्री की एक आ जाएगी और वो कम्युनिटी अपने इस एनवायरनमेंट के साथ एक बैलेंस में रह जाएगी और उससे आगे जो है वो चेंज नहीं आएगा इस कम्युनिटी में एंड दैट इज नोन एज अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। सो व्हाट इज द concept of climax community? So climax community, we assume that the plants colonize and establish themselves in a given region, can achieve stable equilibrium, एक stable equilibrium, there would be no further changes। रॉक जो है वो ख़त्म हो गया है, उनकी ब्रेकडाउन कंप्लीट हो चुकी है, ये इस रॉक से अब सॉइल बन गया है, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो चुके हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बन चुकी है और ये जो कम्युनिटी होगी क्लाइमैक्स कम्युनिटी, दैट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ट्रीज एंड सम अदर प्लांट्स। अब ये इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस में रहेगी। इफ नो फर्दर चेंज वुड अकर इन द इन्वायरमेंट, नो फर्दर चेंज वुड अकर इन द कम्युनिटीज एंड दैट विल बी लिविंग in balance with the community and that is known as what, climax community, that is known as climax community। Thank you।